Sir, we can see your screen, sir. नहीं बेटा वो स्क्रीन दिख रहा है तुझे, लेकिन क्या होता है कि मैंने दो ब्राउजर खोला हूँ, वो दूसरे ब्राउजर में है, यहाँ पर नहीं है, इसलिए वो यहाँ नहीं आ रहा है। एक ही ब्राउजर पे एक मिनट बेटा यहीं पे ओपन कर लेता हूँ, इसको हो जाएगी वो फट से। ओके सो बेटा एक गिलास पानी और लाना। क्लास को तो नहीं उधर रख दिया होगा, इधर रखा है। चलो okay, now look at this. Can you see the screen now? Yes sir, yes sir. Okay, see, I'll jump to the bigger questions of 5 marks. Okay, see यहाँ पर क्या होता है कि actually the most important part in this chapter was that evolution, लेकिन वो हमारा हट गया, तो इसलिए क्या होगा कि most of the questions will be from that part only. Still बहुत सारे question आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। See, given below is the experiment to carry it out by the Mendel. Okay, to study the inheritance of the two traits in the garden P. ओके ये डायहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट है। देन ये मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123, a woman women are often blamed for being bearing the daughters. Okay, as a student with the knowledge in the science, how will you explain it to your fellow students that the sex of the child is not determined by the mother's genetic contribution? Okay, that is the X and Y chromosome part. Okay, ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। Then in which of the following traits are transferred from parents to the offspring? Okay, then mention the two processes that essentially occur okay in the sexual reproduction. Then how is the number of the chromosome is retained in the species? Okay, यहाँ पे पहले इस क्वेश्चन को सुनो। Okay, mention the two processes that essentially occurs in sexual reproduction. तो sexual reproduction में दो important process कौन से होते हैं? पहला होता है formation of gametes और दूसरा होता है fusion of gametes. Okay, formation of gametes and fusion of gametes. These are the two important processes over here. Okay, the formation of the gamete that involves reducing the chromosome number to half and the genetic recombination. Okay, fusion of the gamete to maintain the chromosome number. Okay, characteristics of that species. Okay, then next उसके बाद क्या रहता है? Fusion of the gametes to then the original number of the chromosome becomes half during the gamete formation. Hence, when the gametes combine, okay, the original number of the chromosomes is restored in the progeny. Okay, then see, इस तरीके से हम यहाँ पर क्या होता है इसके अंदर इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हाउ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर रीस्टोर्ड। एक्चुअली क्या होता है, सी वी सेड दैट इन रिप्रोडक्शन बोथ द मदर एंड द फादर आर कंट्रीब्यूटिंग 50% genetic material. Okay, then so how is what happens if they both are contributing to the DNA, then how the number of the chromosomes will be maintained. See, आपको एक बात हमेशा के लिए याद रखनी है कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम फिक्स होता है। अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिस्टर्ब हो गया तो वो सेल सीधे मर जाएगा, तो यहाँ पर क्या होता है, इन ऑर्डर टू मेंटेन द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, देन okay, mother will contribute half of the chromosome and father will contribute half of the chromosome, so that the number of chromosomes will be restored. Okay, then next इसके बाद में क्या होता है, सी यहाँ पर फिर से वही क्वेश्चन है, कौन सा, एक्स वाई क्रोमोसोम का। एक्चुअली क्या होता है, सी जो चीजें गवर्नमेंट हमको सिखाना चाहती है ओके मासेस को, तो उसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए क्या होगा कि सी जैसे सेक्सुअल हेल्थ के ऊपर क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, उसके बाद में पॉपुलेशन कंट्रोल पे क्वेश्चन ज्यादा आते रहते हैं। देन वैसे क्या होगा कि जो सेक्स रेशियो है ये भी बहुत ज्यादा बड़ा इश्यू बन गया हमारे लिए, बिकॉज द सेक्स रेशियो इज मतलब पूरा हिला हुआ है अभी हमारे पास में। क्या होता है, इन सम ऑफ द स्टेट्स देयर आर 1000 मेन एंड ओनली 800 गर्ल्स। तो इस वजह से क्या हो गया कि बहुत ज्यादा इसका इश्यू होने की वजह से इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। ओके, देन नेक्स्ट उसके बाद में क्या है, देन
नेक्स्ट क्या आता है इधर ये देन सी व्हाई डू वी से दैट द होमोजोगस प्लांट प्रोड्यूस द प्योर प्रोजेनी ओके देन डिफाइन द हेटेरोजाइगस ओके एक्सप्लेन हाउ द प्रोसेस ऑफ स्पेसिएशन टेक्स प्लेस सी स्पेसिएशन ये तो उसका पार्ट है देन लेकिन हमको ये पढ़ना है पहले कौन सा this why do we say that the homozygous plant always produce the pure progeny see because of the presence of the same set of genes okay क्या होता है कि जो homozygous plant रहेगा तो उनके पास में सेम सेट ऑफ जीन्स रहेगा दोनों के पास में अगर सपोज सेम सेट ऑफ जीन्स है तो क्या होगा whatever the progeny will be produced that will always be pure okay then next क्या है यहाँ पे explain the heterozygous situation then heterozygous में क्या होता है कि heterozygous is the situation when an individual has two chromosomes or sorry two genes for one characteristics which are contrasting with each other okay they are also called as the allele or allelomorphs of each other then having the different pairs of genes okay then next उसके बाद में क्या रहता है ये उसके बाद में सब जी उसके क्वेश्चन है किस चीज के इवोल्यूशन के हेलो सर हेलो हाँ बोलो हाँ सर वो मैंने वेबसाइट की पूरी पीडीएफ भेज दी आपको वो केदारनाथ की पीडीएफ वो कर अच्छा ठीक है एक मिनट मैं ओपन करता हूँ उस वर्कशीट को ओके देन एक मिनट रुक जाओ कहाँ पर है वो वर्कशीट व्हाट्सएप पे सर व्हाट्सएप पे भेजिए व्हाट्सएप पे ना एक मिनट रुक जा ओके मुझे वहां से देखने दे फिर मैं उसको वो हिसाब से ये करते जाता हूँ ओके आई जस्ट रीड एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट हाँ सर वो करंट अफेयर पे क्वेश्चन है आंसर दूसरा ये हेरिडिटी के ऊपर की क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन आप भेजने वाले थे आपने बोला था पिछले संडे को एक मिनट रुक जाओ बेटा हाँ सर रुक एक मिनट रुक क्या बोला था फिर से बोल आप बोला था कि आपने पिछले संडे को बोले थे कि मतलब ये संडे का पिछला संडे कि आपने बोले थे कि हेरिडिटी के ऊपर का क्वेश्चन बैंक भेजेंगे आप अच्छा ठीक है मैं शायद भेजा था नहीं मतलब आपने मैग्नेटिज्म पे नहीं हेरिडिटी का अच्छा ठीक है भेज देता हूँ मैंने भी निकाल के रखा हूँ एक मिनट में उसको शेयर ही कर देता हूँ उधर से डायरेक्टली देन एक मिनट सुन लो पहले क्या क्वेश्चन है इधर वर्कशीट के अंदर द फर्स्ट क्वेश्चन इन द वर्कशीट इज दी ओन हाइब्रिड क्रॉस वर्कशीट ओके डायरेक्शन सी alleles of the this dimples T is dominant to the alleles of the no dimples okay a man heterozygous for the dimples okay marries a woman who is also heterozygous for dimple okay what is the man's genotype and the female's genotype okay then what is the men's phenotype and the woman's phenotype okay then do the cross to determine all the potential dimple genotype एक मिनट रुक जा बेटा genotypes and phenotypes for the offspring of this man okay see यहाँ पर जो उन्होंने सिचुएशन बताई है अपने तो क्या हो रहा है यहाँ पर सी ये जो होता है ना यहाँ पर इस तरह के जो भी क्वेश्चंस आएंगे तो इस तरह के सारे ही क्वेश्चंस के अंदर ओके देन एक ही लॉजिक रहता है ओके सिर्फ क्या होता है कि ट्रेड्स बदल जाएंगे आपके जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या हो गया तो उन्होंने आपको बताया कि भाई सपोज यहाँ पर कुछ दिख रहा नहीं है हेलो माय स्क्रीन इज नॉट विजिबल खास नहीं दिख रहा कुछ It is visible. आपने शायद स्क्रीन में किया कैमरा अरे is my screen visible means board is visible now Yes, sir. हाँ सी होता क्या है पे सी सपोज एक आदमी है देन वो हेटेरोजाइगस है और उसके पास में क्या है देन डिंपल वाला सी डी इज फॉर डिंपल मतलब डिंपल अगर रहा तो ट्रेड क्या रहेगा कैपिटल डी और स्मॉल डी क्या रहेगा नो डिंपल ओके नो डिंपल ओके मतलब क्या रहता है यहाँ पर जो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन व्हिच इज गिवन ओवर हियर दिस डिंपल हैविंग डिंपल और नॉट हैविंग द डिंपल यहाँ पर क्या हो गया कि एक डोमिनेटिंग ट्रेड बन गया हुआ है ओके देन सी listen again okay यहाँ पर see the allele for the dimple the capital D is dominant to the allele for no dimple small d okay man heterozygous for the dimples marries a woman for heterozygous for the dimple okay तो उनका दोनों का भी जीनोटाइप क्या रहेगा और फिनोटाइप क्या रहेगा तो क्या होगा सी जो मैन है ओके वो मैन का जीनोटाइप ओके देन किस तरीके का रहेगा उसका जीनोटाइप रहेगा कैपिटल टी स्मॉल डी ओके बिकॉज वो हेटेरोजाइगस है उसके पास में क्या रहेगा एक डोमिनेटिंग जीन्स रहेगा और एक रिसेसिव जीन रहेगा और जो वुमन है ओके वुमन उसका भी जीनोटाइप कैसा रहेगा कैपिटल टी एंड स्मॉल टी
ओके अगर हमने इनका क्रॉस किया तो क्या होगा, सी इसके पास में दो जीन्स रहेंगे, मैन के पास में कैपिटल डी एंड स्मॉल डी, और फीमेल के पास में भी क्या रहेंगे, दो जीन्स रहेंगे कैपिटल डी एंड स्मॉल डी। ओके और अगर हमने इनका क्रॉस किया तो क्या होगा, सी यहाँ पर आएगा कैपिटल डी कैपिटल डी कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल डी स्मॉल डी स्मॉल डी स्मॉल डी। ओके इस तरीके से क्या होगा यहाँ पर कि इनकी जो F1 जनरेशन आएंगी, ओके इस F1 जनरेशन के अंदर इनके F1 जनरेशन में क्या आ जाएगा, यहाँ पर F1 जनरेशन में आएगा कि देन देयर विल बी 3 चिल्ड्रन व्हिच विल बी हैविंग द डिंपल। ओके देयर विल बी 3 व्हिच विल बी विद डिंपल। कितने रहेंगे, विद डिंपल विल बी 3। ओके एंड विदाउट डिंपल, ओके विदाउट विल बी 1। उस तरीके से उनका रेशियो कितना रहेगा, 0:3:1 रेशियो। ये होगा उनका फिनोटाइपिक रेशियो, ये हो गया फिनोटाइपिक रेशियो। और इनका जीनोटाइप रेशियो क्या रहेगा, जीनोटाइप रेशियो रहेगा इनका कैपिटल डी कैपिटल डी कैपिटल डी स्मॉल डी स्मॉल डी स्मॉल डी। ओके रेशियो रहेगा 1:2:1। सी इट इज सिमिलर टू दैट F2 जनरेशन ऑफ द मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट। ओके सिर्फ क्या है, ट्रेड्स बदल गए, सिर्फ क्या हो गया यहाँ पर, ट्रेड्स बदल गए, अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम। ओके देन नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं उसमें का क्या है, तो नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या होता है। Okay. The allele for the what is this? पढ़ती नहीं आ रहा है वो उसके ऊपर से। allele for the Hitchcock thumb. Hitchcock's thumb. What is this Hitchcock's thumb? मालूम नहीं सर। Okay, H is recessive. Okay, to the straight thumb. Okay, if the man, okay, and his wife are both homozygous recessive. Okay, and will any of their offspring potentially have the Hitchcock's thumb? No chance. Okay, क्या होगा यहाँ पर, सी सपोज अभी ये Hitchcock's thumb बोले तो मुझे समझ में नहीं आया क्या है यहाँ पर, लेकिन जो उन्होंने कॉन्ट्रास्टिंग बताया उसके हिसाब से हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि सपोज ये ऐसा मुड़ा हुआ थंब, मतलब समझ लेते हैं उसको यार। ओके तो क्या हो रहा है यहाँ पर, सपोज जो मुड़ा हुआ थंब है, ओके वो सॉरी रिसेसिव है, ओके और जो स्ट्रेट थंब है वो डोमिनेटिंग है। ओके ऐसा यहाँ पर उसने बताया हमको क्वेश्चन के अंदर कि दो टाइप के थम्स होते हैं यहाँ पर। देन कौन कौन सा थंब है यहाँ पर, पहला है हिचिकर्स थंब। ओके देन क्या क्या वर्ड यूज करते हैं, ओके हिचिकर्स थंब, ओके स्मॉल एज, ओके एंड स्ट्रेट थंब। दिख रहा है मेरा बोर्ड, थंब इज कैपिटल एच। ओके और दोनों भी होमोजाइगस रिसेसिव है, वैसे दोनों भी देयर आर टू पीपल बोथ आर होमोजाइगस रिसेसिव। ओके तो क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि इनके बच्चे के अंदर देन हिचिकर्स थंब आएगा, मतलब क्या होता है, इफ सपोज द मैन इज लाइक दिस एंड द वीमेन इज आल्सो लाइक दिस, देन is it possible that their baby will have, potential baby will have the Hitchcock's thumb? Sorry, they both are recessive. Okay, recessive. Then, so what will happen? Is it possible that their offspring will have a straight thumb? Not possible. क्या होगा? इसके दो गैमेट्स बनेंगे, इसके दो गैमेट्स बनेंगे। अगर हमने क्रॉस किया, तो यहाँ पर क्या होगा? Then all four, okay, all four will have the Hitchcock's thumb. Okay, no straight thumb, no स्ट्रेट थंब। मतलब क्या होगा यहाँ पर, देन सी दोनों भी कैसे हैं, प्योर ब्रीड है और हेटेरोजाइगस है, इसलिए क्या होगा कि इसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। ओके कोई चेंज नहीं होगा। ओके देन नेक्स्ट इसके बाद में क्या होता है यहाँ पर, दिस वेट ये सब ऐसे बकवास क्वेश्चन है उदितांशु। Okay, then see what is the man's genotype and the woman's genotype। तो man का genotype क्या रहेगा, कैपिटल small h और women का भी क्या रहेगा small h। Then next what genotype, okay, must offspring have in order to have the phenotypic trait of the Hitchcock's thumb। Okay, then तो क्या रहेगा, see अगर suppose ये Hitchcock's thumb वाला जो trait है ये अगर recessive है तो the child can have the Hitchcock's thumb only when it will have both the small h, okay, because even if it has a one capital H then he will have the straight thumb,
he will have the straight thumb. ओके देन तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सी एक बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट को देन अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ में कंपेयर करके कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश की है और कुछ भी नहीं है. अगर सपोज मैं आपको पूछूं, ओके एकदम सिंपल वर्ड्स में मैं आपको पूछता हूं कि अगर सपोज एक आदमी है और एक औरत है, ओके द फीमेल इज रिसेसिव, ओके होमोजाइगस, ओके शी इज short and homozygous, she is short and homozygous, the man is also short and homozygous. तो मैन के पास में कौन से ट्रेट रहेंगे, स्मॉल टी, और विमेन के पास कौन से ट्रेट रहेंगे, स्मॉल टी. सो देयर इज नो चांस दैट दे विल हैव द टॉल चाइल्ड because they both are homogeneous and recessive. Okay, so their child will also be homogeneous and recessive. Okay, the child can be tall only when he will have the capital H trait. Okay, means heterozygous. Okay, otherwise there is no chance. ऐसा उस क्वेश्चन का मीनिंग होता है. Okay, then next उसमें और क्या क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, see in certain breed of dogs, okay, gene L, okay, codes, okay, the codes for the hair length. Okay, the dominant trait is short hair and the recessive is long hair. Okay, suppose the heterozygous female dog and the homozygous recessive male dog. Okay, mate. अब यहाँ देखो क्या होता है. See, जो capital L है for the long hair and this small L is for the short hair. Okay, then see, remember here in a certain breed of dog, the gene capital L, okay, codes for the hair length. Okay, the dominant trait is short hair and the recessive hair is long hair. सी यहाँ पर क्या होता है, तो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे सी सपोज डॉग्स की एक ब्रीड है, ओके, उसके अंदर L स्टैंड फॉर लेंथ ऑफ हेयर, ओके, लेंथ ऑफ हेयर. ओके, तो सपोज यहाँ पर क्या होता है, कैपिटल L स्टैंड फॉर लॉन्ग हेयर, ओके, एंड स्मॉल L स्टैंड फॉर शॉर्ट हेयर. ओके, शॉर्ट हेयर, देन ओके शॉर्ट हेयर. ओके, यहाँ पे देखो क्या है उसके अंदर, उसने और क्या दिया है उस क्वेश्चन के अंदर कि कैपिटल L स्टैंडिंग सी दिस, हाँ, द डोमिनेंट ट्रेट इज द शॉर्ट हेयर. ओके, तो ये मैंने उल्टा लिख दिया है यहाँ पर. ओके, देन कैपिटल L रिप्रेजेंट शॉर्ट हेयर, इट इज रिप्रेजेंटिंग शॉर्ट हेयर. ओके, एंड स्मॉल L विल रिप्रेजेंट लॉन्ग हेयर, लॉन्ग हेयर. ओके, देन अब यहाँ पे देखो क्या होता है. Then here a spouse heterozygous, okay, suppose a heterozygous female dog and the homozygous recessive male, okay, dog mate. Okay, तो यहाँ पर कैसी है, heterozygous female है. अगर heterozygous female तो कैसी रहेगी, कैपिटल L स्मॉल l. ओके, और क्या यहाँ पर homozygous recessive dog, ओके, मेल डॉग, homozygous recessive, तो कैसा रहेगा वो L. ओके, अब सपोज ये दोनों अगर क्रॉस कर रहे हैं तो आपको बताना है कि देन व्हाट इज द डॉग्स जीनोटाइप, मेल डॉग का जीनोटाइप क्या है. तो ये मेल डॉग का जीनोटाइप क्या रहेगा, स्मॉल एल, दोनों भी स्मॉल एल रहेंगे. ओके, और ये फीमेल का है, फीमेल डॉग का जीनोटाइप क्या रहेगा, कैपिटल L स्मॉल एल, कैपिटल L स्मॉल एल. ओके, व्हाट विल बी द जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ द F1 जनरेशन. ओके, तो इनका F1 जनरेशन कैलकुलेट करो, क्या आएगा इनका F1 जनरेशन. देन F1 जनरेशन ऑफ दिस This cross will be like this. See, I'll show. Okay, इनका जो F1 क्रॉस रहेगा क्या रहेगा, देन इसके पास दो जीन्स आएंगे, कैपिटल L स्मॉल l. ओके, और इसके पास में दो जीन्स आएंगे, देन स्मॉल l स्मॉल l. ओके, आपने इन दोनों का क्रॉस किया तो इन दोनों का क्रॉस करने के बाद में क्या आ जाएगा यहाँ पर, देन कैपिटल L स्मॉल l, कैपिटल L स्मॉल l, स्मॉल l सॉरी कैपिटल L स्मॉल l, सॉरी ये दोनों भी स्मॉल थे. ओके, और ये क्या रहेगा, दोनों भी स्मॉल है. ओके, अरे यार मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ, ये स्मॉल. ओके, तो यहाँ देखो. ओके, इसमें क्या रहेगा, अगर हमने इसका फिनोटाइपिक रेशियो निकाले तो दो डॉग जो रहेंगे तो लॉन्ग हेयर वाले रहेंगे और दो डॉग जो रहेंगे तो वो शॉर्ट हेयर वाले रहेंगे. ओके, किस तरीके से क्या होता है कि अगर सपोज हमने एक बार ये आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा लेटर कौन से जीन को रिप्रेजेंट करता है, कौन से टाइप के ट्रेट को रिप्रेजेंट करता है और उनका जीनोटाइप क्या है, दोनों का, मेल का और फीमेल का, तो उनके गैमेट्स के ऊपर से फिर हम पनेट्स कर बनाकर उनका फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इसके बाद में और क्या है, सी दिस वन. हाँ,
चलो अभी इसको ज्यादा ध्यान नहीं दे सकते क्योंकि क्या होता है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो, सबके सारे के सारे क्वेश्चन ये चीज हो गए। ओके उदिरांशु एक बार उसको फिर से चेक कर, तुझे पता चलेगा कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर आइडेंटिकल। ओके सिर्फ क्या होता है एक एक दो कैरेक्टर्स इसको बदल कर वो बनाए हुए रहते हैं वहां पर। ओके पहले यहाँ पे देखो, हाउ द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमिन्ड इन द ह्यूमन बीइंग। ओके सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमिन्ड इन द ह्यूमन बीइंग्स। ओके कैसे होता है यहाँ पे देखो, सी होता क्या है यहाँ पे कि हमको पता है कि हाफ ऑफ द जेनेटिक मटेरियल इज कंट्रीब्यूटेड बाय द मदर एंड हाफ ऑफ द जेनेटिक मटेरियल इज कंट्रीब्यूटेड बाय द फादर। ओके तो होता कैसे है, सपोज मान लो यहाँ पर जो, और उसके अलावा हमको ये भी पता है कि क्या होता है कि इन ह्यूमन, ओके इन ह्यूमन देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। कितने होते हैं? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। इसमें से क्या होता है, आउट ऑफ दिस 23 पेयर्स देन 22 आर आइडेंटिकल, 22 आर आइडेंटिकल, और उनको क्या बोलते हैं हम? ऑटोसोम्स। क्या बोलेंगे? ऑटोसोम्स। ओके देन नेक्स्ट, तो आउट ऑफ दिस 23 दिस 22 आर ऑटोसोम्स मींस कैसे होते हैं? आइडेंटिकल। बट जो 23rd पेयर होता है देन तो क्या होता है? इन मेन, ओके इन मेन इट इज डिफरेंट। ओके इट इज डिफरेंट। ओके वन इज लॉन्ग, उसको बोलते हैं हम एक्स क्रोमोसोम, एंड सेकंड वन इज शॉर्ट, ओके उसको बोलते हैं वाई क्रोमोसोम। ऑन द अदर हैंड इन द वीमेन, ओके और इन द वुमन क्या होगा यहाँ पर? इन द वीमेन देन they are again same and both are long। तो इस वजह से क्या होगा, किसी अगर हमने एक्स वाई बेसिस के ऊपर यहाँ पर इस मेल और फीमेल का जीनोटाइप लिखा, तो जो मैन होता है, मैन का जीनोटाइप क्या आएगा यहाँ पर? मैन का जीनोटाइप रहेगा एक्स वाई। ओके देन और जो वुमन रहेगी उसका जीनोटाइप क्या रहेगा? एक्स एक्स। क्या रहेगा? एक्स एक्स। ओके देन आई थिंक वी शुड राइट इट वाई एक्स। Okay, why YX? Because here the Y is dominating. Okay, the moment Y chromosome will appear, then the progeny will be the male. Okay, अब क्या होता है? Suppose see, ये हो गया इनका जीनोटाइप, ये मैन होगा, ये वुमन हो गई। ओके अब क्या होगा कि जब इनकी बॉडी के अंदर गैमेट फॉर्मेशन होगा तो एक गैमेट को मिलेगा वाई क्रोमोसोम, दूसरे को मिलेगा एक्स क्रोमोसोम। इधर क्या होगा? दोनों को मिलेंगे एक्स क्रोमोसोम। ओके इसका पनेट स्क्वायर बनाओ, तो पनेट स्क्वायर क्या बनेगा? वाई एक्स। इधर क्या रहेगा? एक्स एक्स। तो इसकी वजह से क्या आ जाएगा यहाँ पर? देन सी क्या आएगा? वाई एक्स के एक्स एक्स वाई एक्स एक्स एक्स। तो इस तरीके से क्या होता है यहाँ पर? सी जिनको दोनों को भी वाई और एक्स मिला है वो दोनों भी क्या रहेंगे? मैन या फिर बॉय। ओके कितने रहेंगे यहाँ पर? बॉयज। देन बॉय वो रहेगा वाई एक्स क्रोमोसोम और दो यहाँ पर बॉयज रहेंगे, और जो गर्ल्स रहेंगे उसका क्या रहेगा? दे विल हैव एक्स एक्स क्रोमोसोम एंड देयर विल बी टू गर्ल्स। सो दैट्स व्हाट हैपन। सी इन केस ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स, ओके द सेक्स इज डिटरमिन्ड बाय द सेक्स क्रोमोसोम। Okay, and there are 50% possibilities that the potential baby who is going to born for a couple will be a boy, or 50% probability that it will be a girl. Okay, दोनों की possibility 50-50% रहती है। Okay, then चलो और क्या है इधर? बार बार क्वेश्चन जो है तो इसी के ऊपर आएंगे। देन इसके अलावा क्या रहेंगे फिर बाद में? छोटे छोटे क्वेश्चन जो है तो वो एक एक मार्क के क्वेश्चन किसी भी चीज के ऊपर आ सकते हैं। ओके देन मैं एक बार फिर से जंप करता हूँ एक मार्क के क्वेश्चन की तरफ, ताकि वहां से हमको थोड़ा आइडिया हो जाए। ओके कि ऑब्जेक्टिव किस टाइप का आ सकते हैं। ओके जस्ट लिसन हियर, देन सी आई एम ओपनिंग द सेम थिंग अगेन। ओके हेलो यस सर आज क्वेश्चन बैंक भेज देना सर प्लीज। क्या बेटा? हेरिडिटी के क्वेश्चन बैंक। ये क्वेश्चन बैंक ही ओपन किया मैंने। नहीं विदाउट सॉल्यूशन आपने वो मैंने ऑलरेडी करके रखा डाउनलोड। ओके मैं दूसरे स्टेपिंग की क्लास में शेयर भी किया था, उन लोगों को इसकी तुरंत ही बात भेज देता हूँ मैं उनकी क्लास के बाद में। सी क्या यहाँ पर? द मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ ब्रीडिंग द पी प्लांट्स, ओके बियरिंग द वायलेट फ्लावर विद द white pea plant, okay bearing the white flowers. Okay what will be the result of the F1 progeny? यहाँ पर क्या होता है? उन्होंने बताया कि then the F1 progeny will bear violet flower। तो इससे आपको एक चीज याद रखनी है कि violet color is dominating over the white color, violet color is dominating over the white color। okay ये आपको लर्न करना है यहाँ पर। then in the beetle, sorry इसको छोड़ दो beetle का। then what is the indication do we get?
okay, by the reappearance of the dwarf plant in the F2 generation. Okay, after obtaining the progeny in F2 generation in a dihybrid cross, okay, Mendel concluded that when the two pair of the traits are combined in the hybrid, okay, one one pair of the character, okay, segregate independently of the other. Okay, मतलब क्या होता है here he is telling the law of independent segregation. मतलब क्या होता है कि in heterozygous situation when the genes for both the traits are present at the same time, then when they will be separated during the formation of the gametes, the two genes will not influence or blend each other. Okay, then next one, how many pairs of the chromosomes are present in the human beings? Okay, there are 23 pairs, ये आपको पता है. Then next उसका क्या क्वेश्चन है वो, see इधर क्वेश्चन see how can the chromosome be identified, question number 9. Okay, अब क्या होता है, सी ये क्वेश्चन को अगर पढ़ना है ना आपको इस तरह के क्वेश्चन, तो इसके लिए आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना पड़ेगी. तो क्या होता है, अगर आप टेक्स्ट बुक के अंदर पढ़ते हो तो आपको पता चलेगा कि देन क्रोमोसोम की एक डेफिनेशन दी हुई है. क्या डेफिनेशन दी हुई है क्रोमोसोम की? देन क्रोमोसोम्स आर देन डिस्क्रीट. डिस्क्रीट मतलब कैसे होते हैं कि स्पेशल होते हैं. ओके, एकदम अलग से रहेंगे. देन डिस्क्रीट. ओके, देन दे आर डिफरेंट लेंथ. ओके, डिफरेंट पोजीशन ऑफ लोकाई. मतलब क्या होता है एक्चुअली, सी अब क्रोमोसोम इज लाइक अ क्रॉस. तो जो क्रॉस की पोजीशन होती है जहां पर दो स्ट्रिप्स एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, देन वो दोनों का जो क्रॉसिंग पॉइंट रहता है उसको बोलते हैं हम लोकाई. ओके, यहाँ पर उसने उसके लिए क्या वर्ड यूज किया है, सेंटीमेयर. ओके, पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर. ओके, सेंट्रोमियर एंड द बैंडिंग पैटर्न ऑन स्टेनिंग. मतलब क्या होता है कि अगर सपोज हमने उसके ऊपर कुछ कलर डाल दिया तो कलर डालने के बाद में क्या होगा कि हर एक क्रोमोसोम के अंदर जो बैंडिंग पैटर्न तैयार होगा वो अलग अलग रहेगा. तो उससे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से टाइप का क्रोमोसोम है. ओके, ये लर्न करना पड़ेगा आपको. देन नेक्स्ट उसके बाद में क्या रहता है, दिस नॉर्मल बेबी गर्ल रिसीव्स हर एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम होम. ओके, मदर एंड फादर. ओके, बोथ मदर एंड फादर. ओके, एंड फादर. ओके, और आइदर फ्रॉम मदर एंड फादर. तो क्या होगा यहाँ पर, द नॉर्मल बेबी गर्ल विल रिसीव द एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम बोथ मदर एज वेल एज फादर. ओके, देन इधर क्वेश्चन नंबर 6 को देखो. Why is the progeny always tall when the tall pea plant is crossed with the short pea plant? Because see, the trait which represent the tallness in the pea plant is dominant over the another trait. Okay, shortness, that is the dwarfness. That's why what will happen whenever a short and a tall will be crossed, then what will happen, all the progeny will be tall. Okay, then no individual are absolutely alike in the population. Why? See question number 11. या ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ता है. Why no two individuals are absolutely alike in the population? Okay, all individuals have different kind of DNA, so the individuals are not alike to each other. Okay, then क्या होता है एक्चुअली, अगर हमने अगर डीएनए मॉलिक्यूल को चेक किया तो उसके अंदर जो अलग अलग एलिमेंट्स की पोजीशन होती है, देन उसको हमने कितना भी ट्राई किया तो एट द मोस्ट हम 100 करोड़ कॉम्बिनेशन बना सकते हैं. कितने? 100 करोड़. सी अगर आपने प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि अगर आपने दो डाइस एक साथ में फेंक दिए तो दो डाइस एक साथ में फेंकने के बाद में ऊपर दोनों भी 6 आने की पॉपुलेशन प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 आउट ऑफ 36. क्यों? क्योंकि यहाँ पर टोटल 36 कॉम्बिनेशन ही होते हैं. ओके, देन तो वैसे ही क्या होता है कि अगर सपोज हमने वहां पर जो आइटम्स है उसको अलग अलग कॉम्बिनेशन में बनाने की कोशिश करें तो टोटल 100 करोड़ कॉम्बिनेशन बनते हैं. ओके, देन 100 करोड़ कॉम्बिनेशन के बाद में क्या होगा कि जो पुराने कॉम्बिनेशन है वो रिपीट होना शुरू हो जाएंगे. इस वजह से क्या होता है कि देन अगर हमने वर्ल्ड की पूरी पॉपुलेशन को 100 करोड़ से डिवाइड करें तो मिलता है हमको 7. ओके, वर्ल्ड की पॉपुलेशन करोड़ जो है पूरे वर्ल्ड की वो 700 से 800 करोड़ के बीच में है. तो इस वजह से क्या होगा कि दुनिया में ओके देन हमारी तरीके के एग्जैक्टली हमारे जैसे डीएनए वाले देन मिनिमम 7 लोग होना चाहिए. कितने होना चाहिए? मिनिमम 7 लोग होना चाहिए जो कि एग्जैक्टली हमारे जैसे ही दिखेंगे इन ऑल रेस्पेक्ट. लेकिन होता क्या है कि सी बहुत सारी चीजों का डिफरेंस आ जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा डिफरेंस किस चीज का आएगा कि हो सकता है कि वो और बहुत बूढ़े हो और आप जवान हो तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा कि आप उनके जैसे दिखते हो या वो आपके जैसे दिखते हैं. हाँ, एक आधी मर्तबा सपोज कोई बूढ़ा आदमी है वो आपको देखो तो अंदाज लगा सकता है कि अरे मैं बचपन में ऐसा दिखता था या मैं जवानी में ऐसा दिखता था. ओके, ये एक पॉसिबिलिटी है. दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है कि
जो एक्वायर्ड फीचर रहते हैं, मतलब क्या होता है कि जो फीचर हम बाद में एक्वायर करते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज कोई मेरे जैसा डुप्लीकेट है, ठीक है, उसने अपना मसल्स वसल्स बना के सिक्स पैक बना लिया तो वो बहुत हैंडसम दिखेगा, ओके, और मैं अपना मस्त अपना, ओके, देन फैमिली पैक, नो टेंशन, ओके। तो इस तरीके से क्या होता है कि कुछ फिजिकल फीचर की वजह से हम एक दूसरे के जैसे नहीं दिखेंगे। मे भी हो सकता है कि हेयर स्टाइल का डिफरेंस होगा, मे भी हो सकता है कि टैनिंग की वजह से हमारी स्किन का डिफरेंस आ जाएगा, मे भी हो सकता है कि मेरी बियर्ड है उसकी बियर्ड ना हो। तो इस तरीके से क्या होता है कि देयर विल बी मेनी फैक्टर्स, ओके, व्हिच विल नॉट अलाउ अस टू लुक वेरी मच सिमिलर टू ईच अदर, ओके। बट ऐसा हो सकता है कि हमारे जैसे सेम क्रोमोसोम वाला कोई ना कोई होगा, लेकिन फिर भी, ओके, फिर भी क्या होता है कि इन अ स्मॉल पॉपुलेशन इट इज नॉट पॉसिबल। इसलिए क्या होता है कि इन द स्मॉल पॉपुलेशन मींस नो टू इंडिविजुअल्स आर एब्सोल्युटली अलाइक, ओके, in the population because all the individuals are different kind of DNA, so all the individual are not alike, okay। इसी वजह से क्या होता है कि even if suppose there are two twins, okay, then दो twins भी एक जैसे नहीं दिखाई देते हैं। then when does the process of gene flow, it is not from our syllabus। then next यहाँ के why is that the progeny of the tall plant, then mostly questions यहाँ पर repeat हो रहे हैं, okay। then next one, what is gene? Question number 14. Look at that question. What is gene? Okay, it is the functional piece of the DNA, functional segment of the DNA that is responsible for the expression of the trait in the organism. Okay, याद रखना, trait means this characteristics. Trait is the characteristics. Okay, then what are the basic events in the evolution? No, वो evolution का आ गया. Then next, after that, what is heredity? Then the transmission of the characters and the trait from one generation to the next generation is called as the heredity, okay। Then next, okay, so question number 16 क्या है वो? Mendel observed a contrasting trait in relation to the position of the flower, mention that trait, okay। see, जो पाइसम सतीवम होता है, इसके अंदर इस प्लांट के अंदर जो फ्लावर की पोजीशन होती है वो दो टाइप की होती है। एक तो हो सकती है एक्सियल या हो सकती है टर्मिनल। कौन कौन सी हो सकती है? एक्सियल या फिर टर्मिनल। एक्सियल मतलब क्या होता है कि फ्लावर ब्रांच के बीच में ही कहीं तो भी ग्रो होगा, और टर्मिनल का मतलब क्या होता है कि द फ्लावर विल ऑलवेज ग्रो एट द टिप ऑफ द प्लांट, इट विल ऑलवेज ग्रो एट द टिप ऑफ द प्लांट, ओके, सॉरी ब्रांच नॉट प्लांट, ओके, एट द टिप ऑफ द ब्रांच, ओके। देन नेक्स्ट, इसके बाद में क्या है यहाँ पर? दिस write the sex of the baby that inherits the Y chromosome. Okay, of course, if suppose the baby inherit Y chromosome from the father, then he will be a boy. Then next one, what is the phenotypic ratio of the dihybrid cross in the F2 generation? It is 9:3:3:1. ये आपको पता है। Then give an example where the sex determinant is regulated by the environmental factor. In the snail, okay, it is determined by the environmental factor, that is the temperature. ओके, मैंने आपको टॉर्टिस का एग्जांपल दिया था और किसका एग्जांपल दिया था? क्रोकोडाइल का। अगर क्रोकोडाइल के एग्स जो है तो वो हाई टेम्परेचर पर हैच हुए तो सब मेल पैदा होंगे और लो टेम्परेचर पर हैच हुए तो सारे फीमेल पैदा होंगे। वैसे टॉर्टिस का होता है। टॉर्टिस में क्या होगा कि हाई टेम्परेचर पर फीमेल पैदा होंगे और लो टेम्परेचर पर मेल होंगे, ओके। यहाँ पर इन केस ऑफ द स्नेल मुझे नहीं पता है एग्जैक्टली कि कौन से मेल रहेंगे और कौन से फीमेल रहेंगे, तो वो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। देन सी when the tall and the dwarf plants were crossed, okay, then fx show only the f1 होगा, it may be f1 not fx, then f1 show only the tall plant, and but in the f2 generation then some plants were dwarf, okay। what does this mean? okay, मतलब क्या होता है यहाँ पर? अगेन हमको ये बताना है कि this law of independent segregation, okay, it means the reappearance of the dwarf character, okay, the recessive trait in the F2 generation, okay, shows that the dwarf trait character was represent in the individual, okay, of the F1 generation but did not express it due to the presence of the tallness or the dominant trait, okay। then और यहाँ पर क्या होता है कि आपको कुछ लॉज को भी रट्टा मारना पड़ेगा, जैसे कि लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ जीन्स, देन लॉ ऑफ dominance, then law of independent segregation and law of independent assortment। ये चारों लॉ के आपको रट्टे भी मारने पड़ सकते हैं, ओके। देन नेक्स्ट, इसके बाद में और क्या कुछ टाइप के क्वेश्चन है इसमें? 2 मार्क्स, ओके। देन
क्या पूछा है 2 मार्क्स में? देन द क्रोमोसोम नंबर ऑफ द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग पेरेंट्स एंड देयर ऑफस्प्रिंग आर सेम, जस्टिफाई दिस। सी यहाँ पर वो बार बार आपको एक ही बात पूछने की मतलब एक्सप्लेन करवाना चाहते हैं कि इफ सपोज बोथ द पेरेंट्स आर कंट्रीब्यूटिंग द डीएनए, देन व्हाई द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इज नॉट बिकमिंग डबल, why the number of chromosome is not becoming double, and you have to explain it with the help of the formation of the this haploid gametes. Okay, in the sexual reproduction both the gametes, male and the female, contain half the number of the chromosome, okay, haploid, okay, or n, and by the fusion of these gametes, okay, a zygote, okay, full set diploid 2n chromosome will be formed. इसलिए क्या होगा, the number of the chromosome will be restored in the offspring. Okay, then on what rules the inheritance is based? Okay, then in each trait, okay, influenced by both the parental and mother maternal DNA. See यहाँ पे क्या होता है? Then the rule of inheritance are based on the fact that the traits in the progeny are carried by the DNAs of both the parent, that is the mother and the father. These rules are known as the Mendel's law of inheritance. और क्या है वो? Law of dominance, law of segregation, law of independent assortment. Okay, then ये 3 लॉ है, आपको तीनों भी लॉ का स्टेटमेंट लर्न करना पड़ेगा. What is law of dominance? Law of dominance says that in the case of the heterozygous situation, only the dominating trait can express itself and the recessive trait cannot express itself. Okay, law of segregation, the law of independent segregation says that in case of the heterozygous situation, when the genes will be separated during the formation of the gamete, they will not influence or blend each other. They will not influence or blend with each other. Okay, then next, law of independent assortment, it says that the 2 genes for the 2 different characteristics, when will be separated from each other, then, okay, they will be separated without influencing or blending each other, and they will be arranged randomly. In fact, क्या होता है कि at the end, okay, some of the new genotypes will be formed. Okay, now look at that question number 35. Okay, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में. Question number 35. What is it? What is the genetic constitution of the human sperm? Okay, mention the chromosomes present in the zygote. Okay, determining the sex of the male child. So what happens? See, then the sperms are of 2 types: 22 autosomes plus 1 Y chromosome. Okay, or 22 autosomes plus X chromosome. Okay, this is the combination of the this is the क्या बोलेंगे उसको genetic constitution of the human sperm. Okay, then second part क्या था उसका? mention the chromosome pair present in the zygote determining the sex of the male child. तो male child के अंदर क्या रहेगा? Then he will have 22 plus Y plus 22 plus X. Okay, उसके पास में दोनों भी रहेंगे. मतलब क्या रहेगा? उसके पास में 22 pairs of the autosomes and 1 pair of the sex chromosome, which will be comprising of 1 X chromosome and 1 Y chromosome. Okay, then next question number 42. How did Mendel explain that it is possible that the trait is inherited but not expressed in an organism? मतलब क्या होता है यहाँ पर? Law of dominant. Okay, yes, it is possible. Then example, when the pure tall plant are crossed with the pure dwarf pea plant, okay, only the tall plants are obtained in the F1 generation. Okay, on selfing the tall plant of the F1 generation, then the tall of the dwarf plants are obtained in the F2 generation in the ratio of 3:1. The reappearance of the dwarf character or the recessive trait in the F2 generation shows that the dwarf trait or the character was present in the individual of F1, but it did not express itself due to the presence of the tallness, which is dominant over the shortness. Okay, इस तरीके से क्या होता है, देखो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि रिपीटेडली सेम चीज आ रही है बार बार. Okay, then how many gene sets should a gene cell have? Okay, then mention the 2 factors causing the evolution. So 1 gene set. Okay, how many gene sets should a germ cell have? Germ मतलब क्या होता है? Gamete. Okay, male and female. तो उसके पास में क्या रहेगा? एक ही सेट रहेगा. Okay, and then after the combination, when the zygote will be formed, it will have 2. Okay, 2 sets. Then what is dominant trait? Okay, with respect to the height in the pea plant, it is the tallness. Okay, tallness is the dominant trait. Okay, and shortness is the recessive trait. Okay, then next, उसके बाद में क्या रहता है यहाँ पर? This. Okay, then what is F2 generation?
ओके सी अब क्या होता है, कुछ कुछ तो बहुत सिंपल क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन क्या होता है तब भी हमको उनका आंसर पता होना चाहिए. व्हाट इज F2 जनरेशन? द जनरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द ऑफस्प्रिंग ऑफ द F1 जनरेशन, दैट इज द फर्स्ट जनरेशन एज द पेरेंट इज कॉल्ड एज द F2 जनरेशन. सर तो फिर Okay. F1 का क्या लिखेंगे? इसका F1 का हाँ सर, आपने डाला था क्वेश्चन. हाँ, द जनरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द जनरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द 2 प्योर ब्रीड प्लांट्स. ओके मतलब कंपलसरी प्योर होनी चाहिए क्या? हाँ कंपलसरी प्योर? नहीं, अब कंपलसरी नहीं होता. क्या होता है यहाँ पे जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था उसके अंदर वो प्योर बताया था. अदरवाइज क्या होगा यहाँ पर के देन द फर्स्ट जनरेशन आफ्टर द क्रॉसिंग ऑफ द पेरेंट्स इज कॉल्ड एज द F1 जनरेशन. यस सर. ओके चलो हियर विल स्टॉप देन एंड टुमारो विल मीट एट 4 o'clock. ओके कोई आ रहा है 6 बजे आज हाँ सर. या 7 बजे? 7 बजे आते होंगे आ जाओ. अगर किसी को आना है 7 बजे तो यू कैन कम एट 7 o'clock. ओके देन और directly we'll meet tomorrow at 4 o'clock and then we'll have class every day at 4 o'clock. Okay, till the exam. Even Friday. Friday also, including Friday. ठीक है. और सर वो हेरिडिटी के क्वेश्चन भेजना ना सर, मैं पोस्टपोन हो गए हेरिडिटी के क्वेश्चन. देख मैं जितने क्वेश्चन भेजा उतने पूरे क्वेश्चन तू आज कल आ जा 6 बजे में पूरे सॉल्व कर देता हूँ. नहीं डाउट के नहीं, डाउट का तो कर दो सॉल्व, पर हेरिडिटी के आपके आपने जैसे मैग्नेटिज्म का हाँ बनाया हाँ ना वो अभी 1 मिनट में जैसी ये क्लास एंड होंगी ना मैं भेज देता हूँ. ओके चलो. ओके चलो बाय. अच्छा 7 बजे के बाद क्या पढ़ा रहे हैं आप? यस बेटा 7 बजे के बाद क्या पढ़ा रहे हैं? जो तू बोलेगा उधर, क्योंकि क्या होता है अभी शायद तुम लोग ही रहेंगे उधर, स्टेपिंग वाले नहीं आएंगे, उनका एग्जाम हो गया आज. सर आपने वो कुछ तो भी हॉल टिकट भेजा था. अरे वो उसकी भी गलती से मैसेज भेज दिया मैंने, वो दूसरों को भेजना था. सॉरी बेटा फॉर दैट. हाँ सर वही मैं सोच रही थी क्योंकि कोई कुछ अटैचमेंट नहीं था उसका. हाँ एक्चुअली क्या हो गया था वो मुझे किसी और ग्रुप में डालना था. अब वो हो गया क्या एक्चुअली कि इतने सारे मैसेज आते हैं. ओके देन वो कुछ सोच गड़बड़ हो गई उसके अंदर. यू वोंट बिलीव हमारे स्कूल के ही अकेले स्कूल के ही रिलेटेड ओके 25 ग्रुप है, 25 ग्रुप्स. ओके कौन से ग्रुप से मैसेज आता है उसका मीनिंग क्या रहता है मुझे आज तक नहीं समझा है. ओके चलो लेट इट बी.